Greetings students and welcome back to the English class. Now, what are we going to study today? We are going to study a new chapter and the chapter name is the Browning version. What is the chapter's name? The Browning version. Now, who has written it? This chapter is a short extract from the play. तो ये चैप्टर कहाँ से एक प्ले से लिया गया है? द ब्राउनिंग वर्जन. और किसने लिखा है? टेरिस रेटिंगिन ने. It is one act play set in school. There are 3 characters in the play, actually 4 characters, children. Taplow, Frank, Mr. Crocker-Harris and Mrs. Crocker, wife of Mr. Harris. Now Taplow is a 16-year-old student. तो Taplow जो होता है वो कितने साल का बच्चा है? 16 साल का बच्चा है, children. Okay. And Frank is a young teacher and Mr. Crocker-Harris is a middle-aged schoolmaster. तो वो एक मिडिल एज स्कूल मास्टर मीन्स इज इन लेट 50s और 50s बोल सकते हैं. Taplow has arrived in the school to do extra work for Mr. Crocker-Harris. He meets Frank and they both engage in a conversation while Taplow waits for Mr. Harris. ठीक है. Later enters Millie, Mrs. Crocker-Harris, who talks to Taplow. अब अंडरस्टैंड ये करना है कि मिस्टर Crocker-Harris का कोई भी डायलॉग नहीं है. उनकी सिर्फ बात, उनके बारे में बात करी जा रही है. ठीक है. Next, now we will talk about the writer. Now, who's the writer? Sir Terence Marvin Rettingen. Okay, he is a British dramatist. So, who is he? He's actually a British dramatist. जो British language में क्या करते हैं? ड्रामा लिखते हैं. He was one of the England's most popular mid-20th century dramatists. He plays a typical set in an upper middle class background. He wrote, अब इन्होंने कौन other books लिखी हैं? The Winslow Boy, The Browning Version, The Deep Blue Sea and Separate Tables among many others. He was born on 10 June 1911, South Kensington, London, United Kingdoms. And he died on 30th November 1977, Hamilton, Bermuda. Okay children, now next. Now we have to study about the characters. पहले characters sketch कर लेते हैं या characters के बारे में पढ़ेंगे तो हमें एक vivid idea हो जाएगा कि कौन कौन characters हैं इसमें. ठीक है. First I'll show you the picture. See, we have Crocker-Harris, Frank Hunter. तो Crocker-Harris और Frank Hunter दोनों टीचर हैं स्कूल में, right? This is John Taplow who's a student. Okay. And we have one more character. Okay. Now, highly disciplined and principled, Crocker-Harris was a teacher who would not compromise on the rules and regulations to suffice sentiments of students. ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा रूल थे जो बहुत प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं, जो स्कूल के रूल्स के थ्रू चलते हैं. Some may agree with his way of thinking, others may criticize him. कुछ लोग उनकी थिंकिंग के थ्रू चलेंगे और कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे ऑफ बीइंग टू फास्टिडियस. ओके, ऑफ बीइंग टू स्ट्रिक्ट. अ टीचर हु हैज़ हार्ड ऑन स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू स्टडी. तो वो क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं. दैट मीन्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट जहाँ पढ़ाई की बात आती है. ही वॉज नॉट ऑफ दोज टीचर्स हु वुड क्रैक रोमांटिक जोक्स इन द क्लास टू मेक स्टडीज़ फन. तो वो क्या करते हैं? वो क्या बोल रहे हैं कि वो क्या करेंगे? वो कोई रोमांटिक जोक्स नहीं क्रैक करेंगे ताकि क्यों फन हो जाए क्लासरूम में. रादर हिज जोक्स वर पुअर. ठीक है, बहुत अच्छे जोक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स. तो ये स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है. Taplow was not a single student was able to comprehend them. Okay. Next, we have Frank Hunter, who's again a teacher. Now, Frank Hunter, a young schoolmaster, watches Taplow's moves unseen. Finally, he interrupts and gives Taplow pointers on his swing. They converse for a few moments. The young man is worried, however, that Andrew will not give him his remove. Remove here does not mean a promotion. ठीक है. अभी वो लोअर फिफ्थ ग्रेड में है और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रिमूव बोलते हैं ब्रिटिशर्स लैंग्वेज में.
He plans to study science when which is Hunter's subject. Okay. Next is John Taplow. John Taplow is a student and he's how many? Like he's 16 years of old. Okay, children. Now Taplow is a boy of 16 studying in lower fifth. His attitude towards his master, Crocker-Harris, was quite mixed. He recognized his scene of discipline, sense of devotion, and stoic nature, but he had a personal grudge against Mr. Crocker-Harris. Okay, he had to do some extra work on the last day of the school. Okay, Taplow was a bit anxious about his result. He was afraid that Harris might have marked him down, might have failed him. Taplow considered Mr. Crocker-Harris different from all other teachers, right? Because he went through the protocol. Now, Millie Crocker-Harris, his wife, whose wife, Crocker-Harris's wife, is younger and vivacious and quite different from her husband. Okay, she no longer loves him but rather loves Frank Hunter. Okay, another teacher, yet despite having an affair with him, she knows he is not in love with her. Now here are some of the picture. This is Crocker-Harris, Frank Hunter, John Taplow and Crocker-Harris, John Taplow and Frank Hunter. Okay, children. Now, children, let us do a little bit of introduction. This short one-act play highlights the attitude of a teenage student, कौन है? Taplow है, towards his teacher. His comments are shocking because they are very close to reality. He imitates the voice of the teacher, Mr. Crocker-Harris. He calls the man almost inhumane, which is not related to humanity. He is mortally afraid of his teacher. His promotion depends on the whim or goodwill of his teacher. But he opens up when the other young science teacher encourages him to do so. He hates the Greek play because he doesn't like the teacher's method of teaching. Mr. Crocker-Harris seems to hate people who make an effort to like him. But according to the student, he is still not a sadist like one or two other teachers. He speaks about the poor Latin joke narrated by the teacher. The boy laughed out of common politeness without understanding the joke. But the teacher asked him to explain the joke to the class. When Mr. Crocker-Harris is not quite happy with his nature, she creates an excuse to send Taplow away. Right? The description of the teachers is damaging. It reflects upon the hopelessness quality of some of the teachers. Now let us continue with the chapter. Okay, now open your books. Come on, student. Now, student, get ready. The Browning version, Terence Rattigan. Okay, this is an excerpt from the Browning version. Now, what is an excerpt, children? Can you tell me? A short extract from writing, movie or music. तो एक short extract है. The scene is set in a school. तो ये scene कहाँ का है? School का है. Frank is young. तो Frank जो है, Frank Hunter जो है, वो है young. And Crocker-Harris is middle age. तो in early 50s या 50s में तो एक अदर उम्र एज के इंसान है. Both are masters, both are teachers, children. Taplow is the boy of 16. अब Taplow कौन है? एक boy है जो 16 साल का है. Who has come in to do extra work. तो who has come to do some extra work. ठीक है. For Crocker-Harris, but the latter, L-A-T-T-E-R, denoting the second mentioned person of the two people. That means latter, but the latter has not yet arrived. That means Crocker-Harris. कैसे पता चलेगा? जब हम दो इंसानों की बात कर रहे हैं, हमने करा है टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 बोला है, फिर Crocker-Harris है. जो हमने जिस लेटर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वो लैटर होता है. तो अभी कौन नहीं आया है? Crocker-Harris नहीं आए हैं. ठीक है. And but the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. अब Taplow is waiting. Okay. Now this scene is a short extract from the play Browning version.
Taplo is a boy age 16 who arrives at the school to do extra work. Okay, to do extra work for Mr. Crocker-Harris, his teacher. He meets another teacher, Frank, and engages in a conversation. तो वो बातें करने शुरू कर देते हैं. With him, while waiting for Mr. Harris, Crocker-Harris is middle-aged student. So he is a middle-aged student. Now let us see. Do I know you? तो फ्रैंक वहाँ से निकलते रहते हैं या बात करते हैं किसको? टैप्लो को. टैप्लो से पूछते हैं Do I know you? टैप्लो बोलते हैं No sir. तो फ्रैंक पूछता है What's your name? तो पूछ रहे फ्रैंक पूछ रहा है आपका नाम क्या है? टैप्लो बोलता है टैप्लो, मेरा नाम क्या है? टैप्लो है. फ्रैंक टैप्लो No, I don't. You are not a scientist, I gather. बोलते हैं टैप्लो है तुम्हारा नाम? No, I don't know you. You are not a scientist, I gather. का मतलब ये है चिल्ड्रन, साइंटिस्ट मतलब ये नहीं कि वो साइंटिस्ट बन चुका है, नहीं, कि तुम साइंस स्टूडेंट नहीं हो. बोले जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि तुम क्या हो, एक साइंस स्टूडेंट नहीं हो. तो टैप्लो बोलता है नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ. अब देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि 16 साल का है और लोअर फिफ्थ में है. इसका मतलब अगले साल से चिल्ड्रन वो क्या हो जाते हैं, वो एक सब्जेक्ट चूज करते हैं. इट इज़ इन ब्रिटिश, ओके, इट इज़ इन इंग्लैंड. तो दैट इज़ वाई दे से द लोअर फिफ्थ. इसके बाद इनका अगर ये क्लास में प्रमोट हो जाता है तो ये क्या करेगा, सब्जेक्ट चूज करेगा. इसका मतलब ये नहीं कि 16 ईयर इज इन ओनली फिफ्थ ग्रेड. द ग्रेडिंग्स आर डिफरेंट आउट देयर. Now Tapler says, no sir, I'm still in the lower fifth. I can't specialize until next term. बोलते मैं तब तक नहीं स्पेशलाइज कर सकता हूँ जब तक मैं अगली क्लास में आ जाऊँ. That's to say, and if I got my remove all right. और remove का मतलब यहाँ मतलब हटाना नहीं होता. remove का यहाँ पर मतलब होता है प्रमोशन. if I am not promoted, ओके अगर मैं प्रमोटेड हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर क्या लूँगा, साइंस लूँगा. ओके चिल्ड्रन. तो फ्रैंक हु सॉ टैप्लो, फ्रैंक सॉ टैप्लो, आस्क्ड हिज नेम, ठीक है, and in which class he studies. Taplo answers him and tells him that he studies in lower fifth standard and he cannot specialize until he gets his division. ठीक है, until he gets his division. Frank asked him whether he got to remove or not, and Taplo replied to his master, Crocker-Harris doesn't reveal the information like this. Now what happens? Frank होता है don't you know if you've got your remove. उसने बोला अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है कि ये लास्ट दिन है स्कूल का और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें प्रमोशन मिली है कि नहीं मिली है. टैप्लो नो सर, मिस्टर Crocker-Harris doesn't tell us the results like the other masters. बोलते हैं कि नहीं, जो Crocker-Harris वो है ना, हैरिस हैं जो हमारे टीचर हैं, वो क्या करते हैं हमको बताते ही नहीं हैं, ठीक है, कि हम क्या हुए, अभी प्रमोट हुए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे. ना इससे क्या पता चलता है, जो Crocker-Harris हैं वो प्रोटोकॉल की टर्म्स में चलते हैं, जैसे वर्क करना होता है. राइट चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव ऑन. फ्रैंक व्हाई नॉट. तो पूछते हैं क्यों, सर ने क्यों नहीं बताया है तुम्हें. टैप्लो वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. उसने बोला वेल सर तुम्हें तो पता ही है वो कैसे हैं, ठीक है. तो फ्रैंक आस्क्ड इफ मिस्टर Crocker-Harris डज नॉट, ओके, तुम्हें पता ही है. टैप्लो पूछता है क्यों, तुम्हें क्यों नहीं बताया. वो बोलता है क्योंकि सर आपको तो पता ही है कि वो कैसे हैं. राइट. नेक्स्ट. फ्रैंक आई बिलीव देयर इज अ रूल that form results should only be announced by the headmaster on the last day of the term. तो उसने बोला कि आई बिलीव, कि मुझे ये लगता है कि देयर इज अ रूल, ठीक है, एक रूल, एक प्रोटोकॉल है, दैट फॉर्म रिजल्ट, ठीक है, कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो कौन अनाउंस करेगा, हेडमास्टर. कब, लास्ट डे ऑफ द टर्म. हर बच्चे का नाम लेकर अनाउंस करेगा कि वो पास हुआ है कि नहीं हुआ है. टैप्लो यस, who else pays attention to it except मिस्टर Crocker-Harris. तो वो बोलता है हाँ जी सर, वैसे भी सिर्फ मिस्टर Crocker-Harris को ये रूल ही मानते हैं, बाकी कोई तो ये रूल नहीं मानता है. सारे टीचर्स अपने बच्चों को बता देते हैं कि वो प्रमोट हुए हैं कि नहीं हुए हैं. सिर्फ कौन नहीं मानता है, मिस्टर Crocker-Harris नहीं मानते हैं.
ठीक है. फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट बट दैट्स नो क्राइटेरिया. तो बोलता है आई डोंट, बोलता है मुझे पता है, ठीक है, कि ये क्या है, एक क्या है, क्राइटेरिया है, ठीक है. दैट्स नॉट क्राइटेरिया मीन्स अ स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग इज जज. सो यू हैव टू गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट. तो बोलते हैं हाँ, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने फेट जानने के लिए कल तक वेट करना पड़ेगा, अपना डेस्टिनी जानने के लिए, कि तुम पास हुए हो या फेल हुए हो कल पता लगेगा. हैव यू, ठीक है, यस सर. अब क्या बोल रहे हैं, फ्रैंक आस्क्ड इफ मिस्टर क्रॉकर डजंट रिवील द रिमूव अर्लियर लाइक अदर मास्टर्स. Taplow tells him that he already knows how Mr. Harris is. So Frank supposed that there is a rule that the form result should be revealed on the last day of the term. Taplow agrees and told him that Mr. Harris follows it very seriously. Frank shares that he doesn't follow it, but still Taplow should wait until tomorrow to know his result, to which he agrees. तब इससे हमें क्या पता चलता है कि सब अपने बच्चों को बता देते हैं रिजल्ट, एक्सेप्ट फॉर हुम, एक्सेप्ट फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस. ठीक है, वो अपने बच्चों को वो प्रोटोकॉल के थ्रू ये चीज़ों को लेते हैं. नाउ फ्रैंक, सपोजिंगली द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन. बोल रहे कि सपोजिंगली तो पास हो जाता है, तो क्या करेगा. टैप्लो, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स. तो बोलते हैं सर मैं तो क्या लूँगा, मैं तो साइंस लूँगा. ठीक है, तो ना इसको ये सुन के तो फ्रैंक को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि साइंस कौन पढ़ाते हैं, फ्रैंक पढ़ाते थे. बट वो बोलते हैं, फ्रैंक सैडली दुख भरे से बोलते हैं, यस वेल गेट ऑल द स्लैकर्स. बोलते हैं क्या, तुम क्या पढ़ने वाले हो, तुम साइंस लेने वाले हो. स्लैकर्स मीन्स लेजी स्टूडेंट्स हु आर नॉट मोटिवेटेड, हु आर नॉट हार्ड वर्किंग. टैप्लो प्रोटेस्टिंगली, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस. तो बोलते हैं नहीं नहीं सर, आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है. मैं क्या हूँ, मैं सबसे ज़्यादा क्या हूँ, साइंस में इंटरेस्टेड हूँ. ठीक है. टैप्लो, वेल एनीवे सर, इट्स नॉट अ गुड डील, मोर एक्साइटिंग दैट दिस मक. ठीक है, तो बोलता है कि मुझे पता है सर, उसके हाथों में बुक रहती है, इंडिकेटिंग द बुक, मक यूजलेस. ठीक है, तो वो हाथ पे बुक दिखता है, बोलता है कि साइंस तो इस बुक से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सर. व्हाट इज़ दिस मक. तो बोलते ये मक क्या है, ये बुक किसकी है. तो वो बोलता है एस्चुलिस सर, द एगमेमनॉन. तो बोलते हैं ये एस्चुलिस है, बुक का नाम क्या है, एस्चुलिस है सर, और किसने लिखी है, एगमेमनॉन. ठीक है, तो एस्चुलिस कौन क्या था बेटा, ही वॉज एन एंशिएंट ग्रीक tradition who is referred to as father of tragedy, and Agamemnon is he was the king of Messenia in Greek mythology. ठीक है, तो बोलते हैं ये देखो ये बुक है, इससे ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग साइंस हो सकती थी. अब राइट नाउ then Frank says, and you considered view is that the agmom is muck. बोल रहे कि ये जो तुम बुक दिखा रहे हो ये यूजलेस है, ये बोरिंग है. वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक. उसने बोला नहीं नहीं सर, मेरे को तो नहीं लगता कि ये जो बुक है वो मक है, ये बोरिंग है. आई सपोज इन अ वे इट्स रादर अ गुड प्लॉट. बोल रहे ये तो बहुत अमेजिंग प्लॉट है. ठीक है, plot, really, a wife murdering her husband and all that. I only meant the way it is taught to us. तो बोल रहे कि नहीं नहीं सर, वैसे ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक प्लॉट है जहाँ पर एक वाइफ अपने हस्बैंड को मर्डर कर देती है. एंड बट मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग क्या लगता है कि जिस तरह से ये पढ़ाया जाता है. जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग. बोले कि बहुत ज़्यादा ग्रीक वर्ड है जो कि निटेड टुगेदर हैं, और क्या करते हैं फिर टीचर लाइक हम ऐसे करते हैं ना, गलत हो जाते तो टीचर्स ऐसे से लाइन बना देती या क्वेश्चन मार्क कर देती हैं. बोलते अगर एक भी मीनिंग गलत हो जाए तो बाकी 50 लाइन्स में ऐसा हो जाता है. राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हियर. तो अब यहाँ पर
एक चीज़ और है, फ्रैंक जो है वो साइंस को सैडली को क्यों बोलते हैं? वेट, आई विल शो यू। उस यहाँ पर देखो, साइंस को सैडली क्यों बोलते हैं चिल्ड्रन? सैडली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फ्रैंक थे, ही बिलीव्ड इन मोर प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, नॉट द ओल्ड वे ऑफ टीचिंग साइंस, ठीक है। तो वो क्या सोचते थे कि जो साइंस है वो मच मोर, यू नो, it is must be based on theoretical, right? So that is why he is sad. Now children, Frank asked Taplow about what remove he is interested to take further, and he replies science. Remove मतलब जब वो प्रमोट हो जाएगा तो वो क्या लेगा आगे? तो वो बोलता है कि मैं साइंस लूँगा. Frank tells him that they have some lazy students in science, of to which Taplow clarifies that he is interested in the subject, that is why he wants to take it. तो वो बोलता है कि नहीं नहीं सर, मुझे साइंस की ज़रूरत है, मुझे अच्छा लगता है, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग साइंस. Frank tells him that he is not interested in science which he has to teach in the school. तो वो बोलता है कि मैं तो साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो कि मैं पढ़ाता हूँ. क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो जो पढ़ाना चाहते हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, राइट? Taplow thinks that the subject that Frank teaches is still a good deal. तो वो बोलते हैं कि जो आप पढ़ाते हैं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट जो मेरे हाथ में बुक है ये तो बहुत ज़्यादा क्या है चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है. तो फ्रैंक टीचेस इन अ गुड डील. अपॉन आस्किंग व्हाट द बुक इज़, तो वो पूछता है कि कौन सी बुक है, तो बोलता है इट इज़ एस्टिलिस, and the author is Aeschylus and the Agamemnon is the book. Taplow further shares his view about the Agamemnon. He thinks his plot is good. वो बोलता है कि नहीं, ये प्लॉट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बट जिस तरीके से वो पढ़ाया गया है इट इज़ वेरी वेरी बोरिंग. ओके, let's move further. You sound a little bitter, Taplow. बोलता है you sound a little bit bitter, Taplow. I am rather, sir. बोले हाँ, kept in तो EH कैसे का साउंड आएगा, ठीक है. तो बोल रहा है कि तुम तो बहुत बिटरली साउंड कर रहे हो. बोलते हैं हाँ मैं हूँ बिटर. तो कैप्टन मीन्स आर यू क्या तुम डिटेंशन में हो? डिटेंशन का मतलब ये होता है जब कोई बच्चा शरारत करता है या काम नहीं करता है तो उसको स्कूल के आज के बाद रुकना पड़ता है, टू मेक समवन स्टे इन अ प्लेस स्पेशली इन स्कूल एज अ पनिशमेंट, ठीक है. तो टैपलो बोलता है नो सर, एक्स्ट्रा वर्क. बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो, ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क है. एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल. बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्क और वो भी लास्ट डे ऑफ द स्कूल. यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ. तो बोलता है कि सर अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क ले आई हूँ, और किसने दिया है? मिस्टर क्रैकर-हैरिस ने मुझे काम दिया है. तो बोलते येस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ. यू वुड थिंक वी वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज लीविंग टुमारो फॉर गुड, बट oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather sir. तो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा काम नहीं करता ना सर, तो मैं क्या खेलता? गोल्फ खेलता. बट लास्ट वीक क्या हो गया, मैं बीमार हो गया, तो इसीलिए मिस्टर कॉकर-हैरिस ने मुझे रोक लिया फॉर दी डिटेंशन, फॉर दी केप्ट इन, ठीक है. सो हियर आई एम एंड लुक एट द वेदर. देखो, बोलता है कि सर देखो कितना अच्छा वेदर है, ठीक है. देन ही सेज गुड लक. Still there's one comfort. You're pretty well certain to get your removed tomorrow for being a good boy in taking extra work. But the good luck for tomorrow. ठीक है. Well, I'm not so sure, sir. That would be true of the ordinary masters, all right. They just wouldn't dare not to give a chap a remove after he's taking extra work. But those sort of rules don't apply to Mr. Crocker-Harris. I asked him yesterday outright if he would give me a remove, and do you know what he said, sir? तो वो बोलता है कि नहीं, और अगर और मास्टर्स होते, अगर मैं ज़्यादा काम करता तो मुझे क्या कर देते? मुझे रिमूव दे देते, ठीक है. बट ये मिस्टर कॉकर के तरह नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. नाउ
On criticizing the book, Frank tells him that you are sounding a little bitter. ठीक है, तो वो बोलता है कि तू बहुत बिटर है अबाउट मिस्टर कॉकर. तो तू बोलता है तू बिटर है मिस्टर कॉकर के बारे में. हैरिस फर्दर Frank's asking if he's staying in school as a punishment, to which Taplow replies that he is in the school on the last day for the term due to the extra work. बोलता है कि मैं इसलिए यहाँ पर हूँ, डिटेंशन के वजह से नहीं हूँ. ठीक है, आई एम रिवाइजिंग विद यू. I am only here for extra work because he was ill last week, due to which he was absent for a day, for which he is compensating now by doing extra work. तो इसीलिए he is doing extra work. He further says that he feels that Mr. Harris also has extra work himself because he is leaving tomorrow for good. बोल रहे कि कल वो छोड़ रहे हैं तो इसीलिए उनका भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम होगा. He further says that Harris did not have any extra work, and yet with such a good weather he has come to school. He also adds that he wanted to play golf at that moment. बोलता है कि मुझे अब क्या खेलना है, मुझे golf खेलने का मन कर रहा है. Frank comforts him by saying that he will get his removed tomorrow due to extra work he is doing for Mr. Harris. तो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम देखो ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक रिमूव मिल जाएगा, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा. ठीक है. ही ऑल्सो एड्स then Taplow is unsure to this and tells him that he might work for other teachers, but Mr. Harris is different. He doesn't give student a remove for doing extra work. तो बोलते हैं कि नहीं, और टीचर्स होते तो मिल जाता मुझे रिमूव, बट मिस्टर हैरिस है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है. ठीक है चिल्ड्रन, ही डजंट गिव अ स्टूडेंट अ रिमूव बाय डूइंग एक्स्ट्रा वर्क. Taplow also asked Mr. Harris about his remove, to which the master gave an astonishing sound. बोलता है कि मैंने पूछा था अपने रिमूव के बारे में, बट उन्होंने बहुत अजीब आंसर दिया है. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट part in the next video. Thank you students.